Hello students, how are you? I hope you are all well. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Sugar Singh Children Academy. A precious good morning to all of you. In last lecture, we had discussed about hybridization. Today we are going to study a new topic that is most important, molecular orbital theory. Molecular orbital theory. Molecular orbital theory in short form MOT, molecular orbital theory. Okay, this theory was developed by R.S. Mulliken and F. Hund in 1932. Okay, the main postulates of this theory is, or you can say, the silent features of MOT, molecular orbital theory. First postulate is, in an atom, electron reside in atomic orbital. Okay, reside means occupy. In an atom, electron reside in atomic orbital, while in molecule electron occupy in molecular orbital. Okay, so this is first postulate. In an atom, electron occupy in atomic orbital, while in molecule, electron occupy in molecular orbitals. Okay, when a bond formed between two atomic orbital, or you can say two atom. So when a bond formed between two atomic orbitals or two atoms, like say hydrogen plus hydrogen, form H2 molecule, bond like as a H bond H. Okay, to bond formed between two atoms or two atomic orbitals. Two atomic orbital means one s orbital of first hydrogen and one s orbital of second hydrogen. Okay, so you can say bond formed between two atom or two atomic orbitals, है ना. तो second postulates, when a bond formed between two atomic orbitals or two atom having same energy and symmetry, when a bond formed between two atomic orbitals or two atoms having same energy or symmetry combine to form molecular orbital. So when a bond formed between two atomic orbitals or two atoms having same energy and symmetry combine to form molecular orbital. Okay, and molecular orbital always formed by a theory that is LCAO theory. LCAO theory means linear combination atomic orbital.
molecular orbital always formed by linear combination atomic orbital theory. Okay, this is second postulate and this is first postulate. तो आपने जाना क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. एटम में इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. सेकंड क्या है कि व्हेन अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दो एटम के बीच क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो दोनों एटम्स होंगे दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, सिमेट्री भी दोनों की सेम होगी. तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म बाय LCAO थ्योरी, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी. Third postulates, while an electron in atomic orbital influenced by, कहेंगे कि an electron in atomic orbital influenced by one न्यूक्लियस. अगर एटम है सोडियम, सपोज सोडियम इज द एटम, और इसमें क्या है? न्यूक्लियस, और दिस इज दीज आर सेल 2 8 1. तो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज 11 इलेक्ट्रॉन. तो इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस्ड बाई वन न्यूक्लियस. व्हाई? बिकॉज एटम हैज ओनली वन न्यूक्लियस. ओके, बट in molecular orbital, but in molecular orbital electrons are influenced by more than one nucleus. कहेंगे क्या कि an electron in atomic orbitals influenced by one nucleus, but in molecular orbitals electrons are influenced by more than one nucleus. It means you can say कि atom is monocentric. Atom is monocentric, but molecule is polycentric. सेंट्रिक मतलब न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस है मोनोसेंट्रिक, और जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होगा जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेंट्रिक, है ना. तो क्लियर हो गया ये बात कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह सिंगल न्यूक्लियस से क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं. ओके, बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन न्यूक्लियस. इट मींस यू कैन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, और एटम इज मोनोसेंट्रिक बट मॉलिक्यूल इज पॉलीसेंट्रिक. ओके. Fourth, the number of molecular orbital is equal to the number of combining atomic orbitals. Okay, when two atomic orbital combine with each other to form two molecular orbital.
ऑर्बिटल। ओके, कहने मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स when two atomic orbitals combine with each other to form two molecular orbitals. It means जितने नंबर में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विथ ईच अदर देन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। ओके, क्लियर हो गया। अब जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा आफ्टर कंबाइनिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसमें से एक को हम क्या कहेंगे, वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। and other is known as anti bonding molecular orbital। ओके, सपोज दैट टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं इसके, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये क्या है हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विथ ईच अदर, अगर दो कंबाइन हो रहा है तो यहाँ पर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जिसमें से एक को हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड सेकेंड को हम क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी आगे हम स्ट्रक्चर बना करके इसको आपको दिखाते हैं। ओके, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विथ ईच अदर देयर फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अदर इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट, फिफ्थ फीचर, द बॉन्डिंग, शॉर्ट फॉर्म में दे रहे हैं, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी and hence greater stability than corresponding anti bonding molecular ऑर्बिटल। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे हमने कहा H एंड H बोथ आर एटम, तो इसके पास 1s। ओके, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो टू मॉलिक्यूल, अगर इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन विथ ईच अदर देन फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बार जब ये कंबाइन करते हैं, ओके, तो एक बार क्या होता है, ये एडिशन करते हैं, एक बार सब्सट्रैक्शन करते हैं। बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स वन टाइम एडिशन एंड वन टाइम सब्सट्रैक्शन। जब ये एडिशन करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और जब यही आपकी सब्सट्रैक्शन करेंगे H-H, है ना, दोनों कंडीशन में ऐड होते हैं, बस ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रोसेस, एडिटिव और एडिशन प्रोसेस। बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक बार एडिशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लोअर। ओके, और स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, स्टेबिलिटी हायर होगी। ओके, स्टेबिलिटी हायर। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी क्या होगी, हायर। ओके, एंड स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, लोअर। क्लियर।
तो नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या बताया गया है कि द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लो एनर्जी एंड हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन करेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इट मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लो एनर्जी एंड हायर स्टेबिलिटी. ये कैसे होता है हम अभी आपको आगे बताते हैं. पहले आप पोस्टुलेट्स जान लीजिए. टोटल पोस्टुलेट्स कितने हो गए हमारे 5. नेक्स्ट पोस्टुलेट्स इन एन atomic orbitals electrons are filled by Hund's rule of Bowl. सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा है ऑफ बाउ रूल एंड Pauli's exclusion principle. ओके. इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार भरते हैं? आप बाउ रूल इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सबसेल, मतलब सबसेल के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके. और किस रूल को फॉलो करते हैं? हुंड रूल में कैसे भरते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल one इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल. आफ्टर दैट लेफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिटल. पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज. नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स. ओके. दीज रूल्स क्या कहेंगे? दीज rules are also applicable for filling of electrons in molecular orbital. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड रूल्स. तो दीज रूल्स, सेम रूल्स आल्सो एप्लीकेबल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके. तो दीज आर साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके. इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये पोस्टुलेट्स आपको क्लियर रहेंगे तो हाउ टू मेक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और LCAO थ्योरी. लीनियर combination of atomic orbitals. LCO का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. देखिए कहेंगे क्या? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू wave mechanics, according to wave mechanics, atomic orbital can be expressed या can be represented by wave function. Okay. A wave function represented as psi. क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स में बताया गया है क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन, अर्थात
size. It means size which represent amplitude of इलेक्ट्रॉन वेव. बस माइंड में सेट करिए कि वेव मैकेनिक्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या मानते हैं हम, वेव फंक्शन था साई. ओके, और ये साई क्या रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. ये लेट अस अप्लाई द मेथड्स ऑन होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इट मींस H2 मॉलिक्यूल. ओके, तो मैंने क्या बताया कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ओके, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन साई और साई विच रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. Okay, let us apply methods on homonuclear diatomic molecules like as H2 molecule. H2 molecule का हम एग्जाम्पल लेते हैं, H2 molecule है ना. तो इन H2 molecule एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. बोथ आर atoms. If both atoms combine with each other to form H2 molecule, और ये क्या है, H एटम, और ये भी क्या हमारा एटम है ना. अब इसमें हमको पता है क्या कि अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन. तो इसको हम वेव फंक्शन की मान लेते हैं क्या, इसे साई, और इसको हम मान लेते हैं साई. ओके, अब मानिए सपोज दैट इसको हम ए मान लें, साई ए, और इसको हम मान लें क्या, साई बी. इस हाइड्रोजन एटम को ए और इस हाइड्रोजन एटम को बी, और इनका वेव फंक्शन क्या है, साई एंड साई. वेव फंक्शन साई एंड साई. अब एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. इट मीन्स 1s1 और शेप ऑफ S सबसेट इज स्फेरिकल. ये हो गया स्फेरिकल. और आप देखते हैं इन H2 मॉलिक्यूल हमने एग्जांपल लिया है, ये एक हाइड्रोजन का हो गया. ऐसे जो अनदर हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये हो गया आपका अनदर हाइड्रोजन. ओके, अब इसमें हमारा क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, इसको हम क्या मानते हैं, साई ए मतलब वेव फंक्शन, और ये हमारा है साई बी. हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम साई ए एंड सेकंड हाइड्रोजन एटम साई बी. बोथ आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा लीनियरली होगा. लीनियरली ये कंबाइन करेंगे. एक प्रोसेस कौन सा होगा, पहली बार ये जब कंबाइन करेंगे तो एडिशन, इनमें क्या होगा, एडिशन होगा, एडिटिव कॉम्बिनेशन होगा. और एक बार कैसा होगा, सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन होगा. कंबाइन करेंगे बोथ प्रोसेस में. एक बार हमें पता है कि व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ओके, तो जो हमारी ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पहले हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये मान लीजिए हमारा है 1s1 और ये 1s1. ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ये भी क्या है, हाइड्रोजन. अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स हम क्या मानते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव फंक्शन मतलब साई, और ये भी क्या है, साई. ये हो गया हमारा साई ए, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम को मान लिया हमने ए एंड सेकंड हाइड्रोजन एटम को बी. तो एक बार इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा, एडिशन. कैसा, एडिशन कॉम्बिनेशन होगा, तो एक ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा. और हमको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज मोनोसेंट्रिक, बट आफ्टर कॉम्बिनेशन जब ये कंबाइन करेंगे, एडिशन होगा, तो दोनों आपको ये जो न्यूक्लियस है किस में चले जाएंगे, यहाँ पर, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हो गए. ठीक, तो ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये कैसा और एडिशन हो रहा है, तो हमारा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और सॉरी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब यही दोनों ऑर्बिटल सेम, यही समझिए आप, जो सेम, फिर हम उसी को लेंगे। अभी मत समझिएगा 1 2 3 4 हो गए, नहीं, यही हाइड्रोजन एटम ही एक बार दोनों एडिशन करेंगे और एक बार दोनों ही क्या करेंगे। अब इस माइनस का मतलब कि नहीं कि ये जो है कंबाइन नहीं कर रहे हैं, दोनों में ही क्या होगा, दोनों कंबाइन करेंगे, लेकिन प्रोसेस अलग, एक बार एडिशन के थ्रू होगा और एक बार जो है सबट्रैक्शन के थ्रू होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन होगा तो बीच में एक हमारा नोड बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। ये हो गया सेम कंडीशन, मोनोसेंट्रिक, एक एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। अब इसमें जाएगा तो ये हमारा क्या है, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। एडिशन हुआ और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के थ्रू जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। तो ये देखिए टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक बार कैसे कंबाइन करेंगे, बाय एडिशन प्रोसेस, और बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक बार कंबाइन करेंगे बाय सबट्रैक्शन प्रोसेस। मतलब दोनों ही हैं, ये नहीं कि 2 2 4 नहीं है, ये यही दोनों एक बार एडिशन करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बार यही दोनों जो है सबट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा एडिशन करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। इट मींस जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर एडिशन के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं तो बॉन्डिंग, और अगर ये सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये दोनों सेम है ना, एक बार दोनों ने एडिशन किया और यही दोनों एक बार में सब्सट्रैक्शन किया। एडिशन करके बॉन्डिंग बनाया, सब्सट्रैक्शन करके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। क्लियर? चलिए ये मत समझिएगा कि 2 और 2 कितना है, ये 4 नहीं, ये प्रोसेस है। एडिशन प्रोसेस के थ्रू बॉन्डिंग, सब्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू एंटी बॉन्डिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिर्फ कितने हैं, 2, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 2, 1 बॉन्डिंग एंड 1 एंटी बॉन्डिंग। एक चीज ये भी जान लीजिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमेशा अगर 2 कंबाइन कर रहे हैं तो हमेशा वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, एक एडिशन प्रोसेस के थ्रू बॉन्डिंग और एक सब्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, ग्रेटर स्टेबिलिटी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हाई एनर्जी एंड लोअर स्टेबिलिटी। ओके, चलिए अब एम्पलीट्यूड, जो भी आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल represented by wave function which represent amplitude of electron wave, amplitude of electron wave. ओके, अब देखिए जैसे सपोज दैट 2 हाइड्रोजन है H और H, है ना, ये सपोज दैट पाथ है ना। अब हाइड्रोजन ये मान लीजिए साई और ये हमारा साई। फर्स्ट हाइड्रोजन को हमने क्या कहा, साई ए, सेकेंड हाइड्रोजन को हमने साई बी। साई क्या है, वेव फंक्शन, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है कैसा, वेव लाइक। ओके, तो मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन का साई ए है, अगर वह ऐसे मूव करना है, ठीक है, और ये जो सेकेंड हाइड्रोजन का एम्पलीट्यूड है मतलब साई बी, और उसका भी मोशन एकदम सेम है, सेम कंडीशन, जैसे ये मूव कर रहा है वैसे ये भी। अगर मान लीजिए टॉप पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीस्ट, अगर डाउन है तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉफ, ट्रॉफ TROUGH, है ना। तो अगर दोनों जो आपके ये वेव हैं मतलब साई ए एंड साई बी, साई ए फर्स्ट हाइड्रोजन, साई बी सेकेंड हाइड्रोजन, साई ए एम्पलीट्यूड एंड साई बी एम्पलीट्यूड इफ शोज सेम डायरेक्शन, मतलब कि साई ए एंड साई बी दोनों क्रिस्ट पर हैं, साई ए साई बी दोनों टॉप पे हैं, फिर साई ए साई बी दोनों क्रिस्ट पर है। इसका मतलब कि इनका जो मूवमेंट है वह सेम डायरेक्शन, सेम कंडीशन में है।
ऐसा नहीं कि एक का टॉप का साई ए टॉप पर है और साई बी डाउन है, ऐसा नहीं। अगर है तो दोनों पृष्ठ पर है, साई ए एंड साई बी। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया साई ए और ये सेकंड वाला हमारा क्या है, साई बी। सेम कंडीशन दोनों क्या है, सेम कंडीशन में है। ओके, तो बनने वाला जो भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वह हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, इफ अगर मान लीजिए कि जो फर्स्ट हाइड्रोजन का वेव फंक्शन है साई ए, अगर मान लीजिए कि ये इसका ये डायरेक्शन है, ये हमारा हो गया साई ए, एम्पलीट्यूड ऑफ साई ए, और ये हमारा हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ साई बी, ये साई बी है ना। अब देखिए साई ए फिर यहाँ आ गया और साई बी यहाँ चला गया, फिर साई ए, फिर देखिए साई ए टॉप पर है, यहाँ पे टॉप मतलब क्रीस्ट पर, और साई बी कहाँ पे है, ट्रॉप पर है। फिर साई बी हमारा कहाँ पे चला गया, क्रीस्ट पर, और साई ए कहाँ पे आ गया हमारा, ट्रॉप। ठीक है, और फिर हमारा साई जो बी है वो कहाँ पे आ गया, साई बी ट्रॉप पर, और साई ए कहाँ पे चला गया हमारा, क्रीस्ट पर। इसका मतलब कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब ये क्रीस्ट पर है तो ये ट्रॉप पर है, जब ये क्रीस्ट पर है तो ये ट्रॉप पर, जब ये क्रीस्ट पर ये ट्रॉप पर। तो इस समय भैया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा हमारा वो कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब बन रहा है तो भी क्या हो जाएगा साई, और ए भी क्या हो जाएगा साई। तो साई बॉन्डिंग, तो बनने वाला क्या होगा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों को एक साथ अगर हम कोरिलेट करें तो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई ए और प्लस माइनस साई बी। ओके, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि साई ए और बी, मतलब साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई ए और प्लस साई बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे साई ए माइनस साई बी। तो साई ए प्लस साई बी, साई ए माइनस साई बी। ओके, दोनों को एक साथ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ साई ए प्लस ये वाला और माइनस ये वाला। ठीक है, इसमें इन फेज में है, इन फेज, और इसमें हमारा क्या है, आउट फेज में, इन फेज एंड आउट फेज। अगर एडिशन हो रहा है, एडिशन कब होगा, जब दोनों एम्पलीट्यूड साई ए एंड साई बी दोनों एक साथ मूव करेंगे, मतलब क्रीस्ट और ट्रॉप पर। तो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा हमारा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब व्हेन एम्पलीट्यूड साई ए एंड साई बी दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आउट फेज में हो, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या होगा हमारा, साई ए माइनस हो जाएगा, मतलब क्रीज ट्रॉप, साई ए माइनस साई बी। तो बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ओके, क्लियर। तो ये किसके लिए है, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा हमारा, जब व्हेन साई ए एंड साई बी प्रेजेंट इन आउट फेज। ओके, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ साई ए एंड साई बी, साई ए साई बी किसका है, फर्स्ट हाइड्रोजन साई ए, सेकंड हाइड्रोजन साई बी। ओके, अगर इन फेज में होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर साई ए साई बी आउट फेज में होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर सेम में होगा तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। ओके, क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।